میں ہوں رحمان اظہر اور اپنا پسندیدہ شو دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور مزید معلومات کے لیے بیل آئیکن پر کلک کریں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سینٹر سٹیج، میں ہوں جمیل سکھیرا۔ ناظرین، سانحہ مچ کے خلاف آج 5ویں روز بھی کوئٹہ میں احتجاج اور دھرنا جاری ہے۔ مظاہرین سے اظہار یکجہتی کے لیے آج ملک کے مختلف شہروں میں احتجاج کیا گیا اور دھرنے دیے گئے۔ صرف کراچی کے 20 سے زیادہ مقامات پر احتجاج اور دھرنا دیا گیا۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، سندھ، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے کئی شہروں میں MWM کے احتجاجی مظاہرے ہوئے اور دھرنے بھی جاری ہیں۔ ناظرین، آج کوئٹہ شہر میں تاجروں اور حیدرآباد میں وکلاء نے بھی ہڑتال کی اور سوگوار خاندانوں سے اظہار یکجہتی کیا۔ اس انسانیت سوز واقعے پر سیاسی قیادت نے بھی متاثرین سے یکجہتی کیا۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے کئی رہنما بالخصوص نائب صدر مریم نواز آج کوئٹہ میں متاثرین کے احتجاجی کیمپ میں گئی۔ انہوں نے متاثرین سے اظہار تعزیت کیا اور حکومت پر بھی تنقید کی۔ میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ لاشیں رکھ کے آپ کے منتظر ہیں۔ ان کی جو تکالیف ہیں، ان کی جو لاشیں ہیں، اس سے کیا آپ کی ایگو بڑی ہے؟ اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ اس پر سیاست نہ کی جائے۔ ہم بالکل اس پر سیاست نہیں کرتے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی ناکامی اور آپ کی بے حسی کو آپ سیاست کہہ کر ٹال دیں گے تو یہ ہم ہونے نہیں دیں گے۔ آپ کو یہاں آنا پڑے گا، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنا پڑے گا۔ میں یہ سوال پوچھنے میں آج ہزارہ برادری کا نمائندہ بن کر میں یہ سوال پوچھنے میں آج حق بجانے ہوں آپ سے۔ یہ آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے، اور اگر آپ تنقید کے ڈر سے نہیں آ رہے تو کوئی بات نہیں، آپ یہاں پر آئیں، تنقید سن لیں تھوڑی دیر، لیکن آپ کا فرض ہے کہ آپ اپنے لوگوں کے غم میں شامل ہوں۔ ناظرین، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری بھی آج کوئٹہ پہنچے اور متاثرین کے دکھ درد میں شریک ہوئے۔ یہ کس قسم کا انصاف ہے اور یہ کس قسم کا ملک ہے کہ آپ جب مزدوری کر رہے ہو، آپ سکول جا رہے ہو، آپ سفر کر رہے ہو تو آئی ڈی کارڈز کو دیکھ دیکھ کے قتل عام ہوتا ہے۔ یہ کہاں کی انصاف ہے کہ ہمارے شہیدوں کو بھی، ہمارے شہیدوں کو خاندان اپنے لاشوں کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کرنا پڑتا ہے۔ ہم اس ریاست سے اپیل کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ جو اس ملک میں محب وطن لوگ ہیں وہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں۔ اگر ہم ان مظلوموں کو انصاف نہیں دلوا سکتے ہیں تو ہم کس کو انصاف دلوائیں گے؟ ناظرین، JUI کے سیکرٹری جنرل مولانا غفور حیدری بھی دھرنے کے شرکا کے پاس پہنچے۔ وزیراعظم عمران خان نے سانحہ مچ کی اطلاع ملتے ہی واقعے کی مذمت کی اور FC حکام کو قاتلوں کی گرفتاری کے لیے تمام وسائل بروئے کار لانے کا حکم دیا تھا۔ وفاقی وزراء، وزیراعظم کے معاون خصوصی، وزیر اعلیٰ بلوچستان اور صوبائی وزراء بھی متاثرین کے پاس پہنچے۔ وزیراعظم نے گزشتہ روز بھی متاثرین کو ان کے مسائل سے آگاہ ہونے کی یقین دہانی کرائی اور جلد ان کے پاس حاضر ہونے کا یقین بھی دلایا۔ وزیر اعظم نے آج شام سانحہ مچ پر حتمی فیصلوں کے لیے ایک اہم اجلاس بھی بلایا، جس میں ملک اور صوبہ بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال، متاثرین کے لیے خصوصی پیکج پر غور کیا گیا۔ بلوچستان ایک مدت سے دہشت گردی کا شکار ہے، جس میں سیکیورٹی ادارے، وکلا، اسپتال، کاروباری طبقہ اور ہزارہ برادری نشانہ بنی ہے۔ ہزارہ برادری گزشتہ 18 برس سے 80 سے زیادہ حملوں کا شکار ہو چکی ہے، جس میں ان کی قربانیاں سینکڑوں کی تعداد میں ہیں۔ حکومت کا یہ کڑا امتحان ہے کہ متاثرین کو ریلیف فراہم کیا جائے، انہیں تحفظ فراہم کیا جائے اور بلوچستان میں آئندہ ایسے واقعات کے تدارک کے لیے مؤثر اقدامات کیے جائیں۔ کیا حکومت اس چیلنج سے نمٹنے میں کامیاب ہوگی؟ کیا اپوزیشن اس کام میں حکومت کے ساتھ تعاون کرے گی یا تنقید برائے تنقید ہی جاری رکھے گی؟ بلوچستان میں دہشت گردی کے تدارک کے لیے حکومت کو مزید کیا کرنا چاہیے؟ وزیر اعظم کوئٹہ جانے میں تاخیر کیوں کر رہے ہیں؟ اس اہم انسانی مسئلے پر بھی سیاست کیوں کی جا رہی ہے؟ ان ایشوز پر آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔
नाज़रीन, आज की डिबेट पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हुमायूं अख्तर साहब, पीपल्स पार्टी से नदीम असगर कायरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और मुस्लिम लीग नून से मलिक अहमद खान साहब हमारे शो का हिस्सा हैं। आप तीनों को मैं वेलकम करता हूं और थैंक यू फॉर योर टाइम। हुमायूं अख्तर साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा और सीधा सवाल, पीडीएम क़यादत तक पहुंच चुकी है, सानिया मच के जो वहाँ पर धरना जारी है उसमें शिरकत की, उन्होंने वहाँ पर बात की, उनकी दादरसी की। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब अब तक क्यों नहीं जा पाए, क्यों कतरा रहे हैं वो जाने से? अब मुझे आपकी बात, अगर आपका सवाल मेरी तरफ था तो पूरी समझ नहीं आई, लेकिन जो समझ आई है उसके मुताबिक मैं जवाब दूं जी। ये बात के वजीर आजम अभी तक क्यों नहीं जा सके। बहुत से हुकूमत के लोग गए हैं, बलूचिस्तान हुकूमत के गए हैं, वजीर आजम ने ट्वीट किया है वो जरूर जाएंगे, जल्दी उधर जाएंगे। और जो एक्चुअल एक्शन था, ये देखें हुमायूं अख्तर साहब, मैं वापस आपकी तरफ आऊँगा, आपकी आवाज़ सही तरह से नहीं आ रही, इस इशू को रिजॉल्व करते हैं, मैं वापस आपके पास आऊँगा। मलिक अहमद खान साहब, मरियम नवाज साहिबा पहुँची वहाँ, लेकिन साथ ही फिरदौस आशिक अवान साहिबा की जानिब से कहा गया कि सियासत की जा रही है अपोजिशन की जानिब से। इस पर आप क्या कहेंगे कि क्या ये मौका है सियासत करने का? थैंक यू जमील। देखिए यार, मैं इट डजंट मेरिट कमेंट के फिरदौस आशिक साहिबा की बात पे जवाब दिया जाए, लेकिन मेरे पास कुछ सजेशंस जो मैं देना चाह रहा हूँ, एंड आई एम सीरियसली फॉर इट। एक वज़ीर आज़म को फ़ौरन जाना चाहिए। मरियम बीबी ने बड़ा अच्छा किया, कल गई, बिलावल साहब ने अच्छा किया, बाकी पॉलिटिकल लीडरशिप ने अच्छा किया। और ये कोई सियासत नहीं है किसी के दुख में शामिल होना जाके, ये सियासत नहीं है। और इस चीज़ का एहसास दिलाना कि वज़ीर आज़म को वहाँ जाना चाहिए, ये उनका हक है, उन्होंने दुरुस्त कहा, उनको जाना चाहिए। लेकिन मेरी ये सजेशन होगी कि जैसे ये हज़ारा कम्युनिटी मार्जिनलाइज्ड है और इनकी जेनोसाइड है, ये मैं आई कांट फाइंड एनी अदर वर्ड फॉर दैट। मैं इसको दहशत गर्दी की वो कार्रवाई नहीं समझता, मैं इसको उस एक संगीन जुर्म का एक शाखसाना समझता हूँ जो कि एक नस्ल कुशी की बात है। अब मेरा ये ख्याल है कि जिस तरह आपके अस्करी क्या जो सर्विसेज में लोग होते हैं जो शहीद होते हैं, उन शहदा के साथ फिर स्टेट का एक कॉन्ट्रैक्ट है और वो स्टेट फिर उनकी कफालत करती है, बच्चों की तालीम से लेके बिजली के बिलों से लेके। तो सिविलियंस आर नो लेसर चाइल्ड ऑफ लेसर गॉड, वो उनको हक है उनका भी। तो हुकूमत अगर संजीदगी के साथ और पॉलिटिकल पार्टीज़ संजीदगी के साथ इस बात पर ये सोचें कि वो सिविलियन जो इस तरह की कार्रवाइयों में मारे जाते हैं, तो जैसे अब ये मजदूर थे तो इनका तो क्या होगा अगर आप एक कॉम्पनसेशन 2, 4, 6 लाख दे देंगे तो स्टेट ने अपना हक तो अदा नहीं किया। रियासत अपना हक तब अदा करेगी जब इनकी हिफाजत में नाकाम हो गई है, तो कम से कम उनको मुआशी हिफाजत तो फ्राहम कर दें उन ख़ानदानों को। अगर उनके बच्चे हैं उनकी फ्री तालीम का असबाब पैदा किया जाए, उनकी जो यूटिलिटीज़ हैं उनका असबाब पैदा किया जाए, सेम ट्रीटमेंट उनको दी जाए जिस तरह कोई कॉम्बैट में शहीद होता है, जिस तरह कोई पुलिस सर्विस के अंदर शहीद होता है। जो यूनिफॉर्म्ड पर्सन के साथ एक आपकी ट्रीटमेंट है वही सिविलियन का राइट भी है, उनको वो हक भी मिलना चाहिए। और मेरी ये सजेशन होगी फॉर ऑल द पीपल, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो या गवर्नमेंट है, जो भी इसके ऊपर एक रिजॉल्व शो करना चाहिए। और ये हज़ारा कम्युनिटी के साथ आपका जितना भी आप इनके साथ करेंगे थोड़ा होगा, क्योंकि पिछले 2 सालों में या 4 सालों में, आज मैंने कोई मीडिया रिपोर्ट देखी है, प्रॉब्ली इट इज़ इन डॉन, और कल मैंने शायद समर अब्बास साहब का एक प्रोग्राम था उसमें उन्होंने जिक्र किया कि 600 मर्द उनके जो हैं 600 मेल मेंबर्स को टारगेटेड कत्ल किया गया है। तो दिस इज़ एन अलार्मिंग फिगर, ये बहुत बड़ी तादाद है। ये कैसे आप इसके ऊपर कोई ब्लाइंड आई कर सकते हैं, या ये वक्त आज गुजर जाए। लाशों की तदफीन तो एक इंसानी अलमिया की सूरत इख्तियार करती जा रही। 5 रोज़ से दिसंबर की यखबस्ता सर्दी है, माइनस में टेम्परेचर है, -6-7 पे, और वो लाशें वहाँ पड़ी हैं। तो वो पहले बाद में, बाकी बातें तो बाद की हैं, बाद में कर लेंगे। उन लाशों की तदफीन का और उन लोगों के बच्चों की कफालत का, और उनको वही ट्रीटमेंट दी जानी ज़रूरी है जिस तरह आप अपने बाकी शोधा को देते हैं। सिविलियंस का भी वो राइट है।
सही सही दूसरी बात जो आप प्राइम मिनिस्टर के हवाले से कह रहे थे, मैं इस पे मेरी अपनी ये एक बड़ी कंसिडर्ड ओपिनियन है, और जिस तरह बाकी सारे लोगों ने भी ये कहा, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का जाना उसके मीनिंग और हो जाएंगे उन लोगों को, उससे कि उनके कुछ तकलीफ जो हैं उसमें उनकी कोई यकीन दहानी जो होगी, जो उसमें वो कमिटमेंट उनको देकर आएंगे, उससे हो सकता है उनकी तशफ़ी हो। और ये एहतजाज जो वो कर रहे हैं, मैंने आज उनकी प्रेस टॉक सुनी है, वो कह रहे हैं कि अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं आते तो वो लाशें उठा के इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे, चाहे वो अकेले अपनी मैयतों को लेकर आए। तो ऐसी सूरत हाल से डरें और इसको संभालने की कोशिश करें। ऑल राइट जी, ऑल राइट, आपका पॉइंट आ गया। नदीम अज़हर कायर साहब, सर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? ऑपोजिशन रहनुमाओं की आमद से मुतासिन का दुख बांटा गया है या अब उनके दुखों पर सियासत की गई है? पहली बात यह है कि किसी के दुख में शरीक होना जो है वो सियासत नहीं होती, और मैं समझता हूँ कि ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने कि वहाँ जाकर उनके साथ इज़हार तज़ियत भी किया है, और उनके जो जज्बात हैं उनके साथ उनने हौसला भी दिया है। और देखने वाली बात यह है कि अगर प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं उन्होंने आज 5वां 6ठा दिन है, लाशें पड़ी हुई हैं और कह रहे हैं कि मैं मिलूंगा और ट्वीट कर देते हैं, लेकिन काबिल गौर बात यह है कि हमारी हुकूमत थी तो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी गए, हमारे वज़रा भी गए, इनके भी वज़रा गए हैं, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो मुतासरीन है उनका मुतालबा प्राइम मिनिस्टर का है। लेकिन इस मुल्क की बदकिस्मती समझ लें कि जब भी कोई डिजास्टर आता है तो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर डेंगू का आया KPK में तो वो नथिया गली जाकर छुट्टियां मनाने चले गए, अगर अपोजिशन जलसे करती है तो वो फनी काला में बैठकर कुत्तों के साथ खेलना शुरू कर देते हैं। और अगर आज देखें तो जहां लाशें पड़ी हुई हैं ट्वीट कर रहे हैं, तो प्राइम मिनिस्टर साहब अगर वो जो टर्किश ड्रामा है उसके अदाकारों को मिलना और उनकी टीम को मिलना अपने लिए कार्य स्वाब समझते हैं, लेकिन वहां पर जाकर जो लोग अपनी लाशें रोडों के ऊपर रखकर जो उनके साथ जुल्म हुआ है वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती है। मैं समझता हूं कि जो सिविलियन वहां पर वाकई जो मलिक अहमद खान साहब ने निशानदेही की कि 600 लोगों को अगर टारगेट करके शहीद किया जाता है तो उनको कंपनसेट भी करना चाहिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सके तो आप अपनी टीम जो भेजी है उस टीम के हाथ में कुछ देकर भी तो भेजते। आप कहते हैं कि हम जो 600 लोग इनके शहीद हुए हैं या ये जो शहीद हुए हैं इनके लिए उनको क्या आपने कंपनसेट किया है? को प्रॉपर कंपनसेट करें। ये नहीं है जिस तरह मैं बिल्कुल तयद करता हूं मलिक साहब की बात की कि 5-6 लाख रुपया क्या है। आज के जहां आपने इतनी महंगाई की हुई है वहां तो 6 लाख की कोई हैसियत ही नहीं है। अगर आप देना चाहते हैं तो एक सिस्टम बनाएं, उनके बच्चों की एजुकेशन का बनाएं, उनके बच्चों की नौकरी का बनाएं, उनके बच्चों को जिस तरह अस्पतालों में हमारे दूसरे अदारों के बच्चों के या लोगों को फैसिलिटीज मिलती हैं अपना इलाज की, इसी तरह उनको भी मिलनी चाहिए। तो कम से कम ये तो हो कि कम से कम जो वो अपने मुल्क के साथ वफादारी निभा रहे हैं उनकी वफादारी है। मैं उनको सलाम पेश करता हूं हजारा कबीले के लोगों को कि जो आज भी इस मुल्क के साथ शहीद भी हो रहे हैं, ज्यादती भी हो रही है, लाशें भी रोडों के ऊपर पड़ी हुई हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान के साथ मुहब्बे वतन है। मैं समझता हूं उनको हमें सोचना चाहिए प्राइम मिनिस्टर साहब को जाकर खुले दिल के साथ वहां पर जाकर, हाँ अगर कोई खामी है तो उनमें बैठे उन्हें मुतमिन करें, वो होंगे क्यों ना होंगे। आपको पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। अगर इस मुल्क का ना सिर्फ कंपनसेशन बल्कि अब सिक्योरिटी सिचुएशन जो है उसका तदारुक करना भी बहुत जरूरी है। हुमायूं अख्तर साहब आपके पास सेम क्वेश्चन लेके आऊंगा मैं सर कि किस चीज का इंतजार किया जा रहा है, क्या प्लान किया जा रहा है, क्या कोई तैयारी की जा रही है कि वजीर आजम साहब वहां जाकर क्या कोई ऐसा ऐलान करेंगे कि फौरन से वो अपना धरना भी खत्म कर देंगे, वो लाशों को भी दफना देंगे, क्या किस चीज की देर है? अगेन आपकी आवाज मुझे सही नहीं आ रही, लेकिन जो मैं फिर कहने की कोशिश करता हूं, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी मैं सुन पा रहा हूं। आप मुझे सुन सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, कंटिन्यू रखिए आप हुमायूं साहब। जी हेलो, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है हुमायूं साहब, प्लीज कंटिन्यू। मैं जवाब देने की कोशिश करता हूं। देखिए,
इसमें कोई शक नहीं कि पूरी हुकूमत इस वक्त मशीनरी मूव कर रही है और हम अपने हज़ारा भाइयों के जो मुमकिन है वो करेंगे। ये पुराना मसला चला आ रहा है, इस मसले के पीछे जो हाथ हैं हमें उस पर भी तवज्जो देनी चाहिए। जो चंद हफ्ते पहले बहुत डोसियर्स तैयार किए गए और दुनिया के मुमालिक गए और दुनिया में गए, बलूचिस्तान में ये जो है इसके दरअसल कौन सी ताकत, मुझे कहूँगा कि हमारी जो बड़ी अपोजिशन पार्टीज हैं वो ये बात भी करें कि ये सारा ताकतें हैं उससे मुल्क से मुल्क के इसमें भी हमें हमारे सिक्योरिटी नौ कामयाब और कराची में आए हैं और हम इंशाअल्लाह ताला ये जो वाकयात हो रहे हैं हज़ारा कम्युनिटी के खिलाफ काफी अरसे बाद अभी ये वाकया हुआ है, ये हर दौर में पहले भी हो चुके हैं, पीपल पार्टी के दौर में होते रहे, बदकिस्मती से PMLN के दौर में ये वाकयात होते रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि ये जो ईवल है इसको खत्म किया जाए माशरे से और कोर्स हमारे जो हज़ारा भाई हैं, मैं आप सब की जो मलिक अहमद खान साहब और कारा साहब ने किए हैं, हम 100% उससे बढ़ के अपने हज़ारा भाइयों के साथ खड़े होंगे और उनकी जो फैमिलीज है और उनके जो बच्चे हैं, उनके जो पीछे फैमिली रह गई हैं, उनका पूरा साथ देंगे। वज़ीर आज़म साहब कब जा रहे हैं उनके पास? हुमायूं अख्तर साहब, जो अभी तक का डेडलॉक है, शेख रशीद साहब वहां पर गए, जुल्फी बुखारी साहब गए वहां पर, ये मुझे बता दें, उनका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आज़म साहब खुद आए, वो आएंगे तो आगे बात बढ़ेगी। अब एक बात जिस पे डेडलॉक है, 5 दिन हो गए हैं धरने पे वो लोग बैठे हैं, लाशें नहीं दफनाई जा रही, ये कोई सियासी इशू तो है नहीं, तो फिर वज़ीर आज़म साहब क्यों ताखीर कर रहे हैं जाने में? ऑब्वियसली देखिए, वज़ीर आज़म का एक ट्वीट आपकी नजर से गुजरा हो, उन्होंने पूरा साथ दिया हज़ारा कम्युनिटी का, हमारे जो भाई हैं, और उन्होंने कहा कि वो जल्द से जल्द पहुंचेंगे और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप अपने लाशों को दफनाइए और वो पहुंच के न सिर्फ इनके गम में शरीक होंगे बल्कि ऐसे इक़दाम उठाएंगे कि ये वाक़यात आइंदा हो ही ना। तो सर वो आपकी बात मान ली हुमायूं साहब, लेकिन उन्होंने नहीं मानी ना, इस ट्वीट पे उन लोगों ने वो लाशें नहीं दफनाई, तो वज़ीर आज़म साहब को तो चाहिए कि वो तो फौरन से जाएं वहां पर। लेकिन मेरा सवाल यही है कि क्या आया कुछ प्लान किया जा रहा है, कुछ उनके लिए ऐलानात किए जाएंगे या उनके लिए कोई ऐसा कोई प्रोग्राम लाया जाएगा, मतलब क्या उनके साथ जाके वादे किए जाएंगे? वज़ीर आज़म साहब क्यों उनको इंतजार करवा रहे हैं? इंतजार देखिए, अब आपको मालूम है कि पूरी मशीनरी हुकूमत की, चाहे वो सूबाई हो, वफाकी हो, मुल्क के इदारे हो, वो इस वक्त हरकत में हैं और आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि ये काफी अरसे बाद ये दोबारा ये वाकया हुआ है, बहुत ही अलमनाक वाकया। जो भी हमारे सिस्टम में, मशीनरी में खामी है उसको दूर किया जाए ताकि ये आइंदा ना हो। ज्यादा ये बहुत ही जरूरी चीज है। ये जो तखरीबकारी हज़ारा कम्युनिटी के खिलाफ एक बार फिर सर उठा किया है, सही। हुमायूं अख्तर साहब, अब मेरा सवाल फिर वही है आपसे कि वज़ीर आज़म साहब जाने में देर क्यों कर रहे हैं? आज जो इजलास चल रहा है इसी मामले को लेकर, इससे पहले भी इजलास हुआ हंगामी बुनियादों पर, बलूचिस्तान में भी इस वाक़े की इंक्वायरी के लिए कमेटी बनाई जा चुकी है। आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रहे हैं कि मशीनरी पूरी तरह हरकत में है, लेकिन सवाल फिर वही है, मेरा भी यही सवाल है, पूरी कौम का भी यही सवाल है कि आज 5 दिन हो गए हैं और ठंड में वो लोग बैठे हैं और वो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म साहब आएँ और हम अपने प्यारों की लाशें दफनाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम वापस इस डिबेट को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी साहब ने हमें ज्वाइन किया। लियाकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर कहिएगा, अभी तक क्या इकदाम किए गए हैं
धरने में मौजूद जो लोग हैं उनके साथ हमने देखा कि प्रॉमिसेस भी किए गए, उनके लिए ऐलानात भी किए गए, लेकिन उन्होंने एक ही बात पर वो वज़ीर है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब खुद यहाँ पर आएंगे तो हम आगे कोई बात होगी। तो अभी तक की प्रोग्रेस क्या है सर? सर प्रोग्रेस ये है कि जो ही ये बदकिस्मत वाकया पेश आया उसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी गई, FIR रजिस्टर हो चुका, और फिर हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, हमारे ऑफिसर्स हैं, वो जब धरना शुरू हुआ उनके साथ वो इंगेज रहे, उनसे रिक्वेस्ट करते रहे। हमारे फिर उसके बाद मिनिस्टर साहबान गए, MPs गए, उसी हल्के और उसी बरादरी हज़ारा बरादरी के 2 MPs हैं इलेक्टेड, जो कोलिशन पार्टनर है बलूचिस्तान गवर्नमेंट में, उनमें एक खालिक हज़ारा साहब मिनिस्टर भी हैं, वो राब्ते में रहे। ज़ाहिर उनका हल्का है, वो खुद हज़ारा है। उसके बाद जो है फेडरल मिनिस्टर शेख रशीद साहब तशरीफ लाए, तो फेडरल मिनिस्टर साहबान के आमद से कबल उनका मुतालबा ये था कि वफाकी हुकूमत का कोई नुमाइंदा है, तो फिर शेख रशीद साहब तशरीफ ले गए, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी साहब तशरीफ ले गए। जब ये तशरीफ ले गए, उनके मुतालबात सुने, और जो कंपनसेशन है, चूंकि माइन वर्कर्स बड़े गरीब हैं, उनके लिए कंपनसेशन शेख रशीद साहब ने उनको अनाउंस किया कि 10 लाख फेडरल गवर्नमेंट देंगे, 15 लाख प्रोविंशियल गवर्नमेंट। उसके बाद उन्होंने नहीं सुना, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक तशरीफ नहीं लाते वो धरना जारी रखेंगे। और उसके बाद फिर वजीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब तशरीफ लाए, फौरी तौर पे वो गए, उनके अमायदीन से उन्होंने मुज़ाकरात किए, धरना में गए, उनको तसल्ली दी और उनको ये बताया कि जो उनके डिमांड्स है सब कंसीड कर लिए जाएंगे, जिस लेवल पे उनको सिक्योरिटी चाहिए फराम की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन जारी है, जो इसमें अरेस्ट हैं, जो टेररिस्ट जहाँ पे भी है, इंशाल्लाह उनको गिरफ्तार करके इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी जो मुंतजिमीन है धरना के और वहाँ पे शुरका हैं, उन्होंने वो अपना जो एक जिद है वो बरकरार रखा और इंसिस्ट करते रहे कि उनका मुतालबा ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जब तक तशरीफ नहीं लाते वो धरना खत्म नहीं करेंगे। तो और प्राइम मिनिस्टर साहब के हवाले शिबली फराज साहब ने चंद देर कोई 1 घंटा कबल उन्होंने ये बताया कि इस हफ्ते में प्राइम मिनिस्टर साहब तशरीफ लाएंगे। तो स्केड्यूल कोई अनाउंस नहीं हुआ, इससे ज्यादा मेरे नोटिस में कुछ भी नहीं। लियाकत शाहवानी साहब, देखें जब शेख रशीद साहब भी वहाँ पर गए, उन्होंने मीडिया टॉक में बताया कि 8 में से 7 मुतालबात उनके ऐसे हैं कि जो हम मानने के लिए तैयार हैं, एक मुतालबा ऐसा है जो हम उनका नहीं मान सकते, जिस पर डेडलॉक है। बज़ाहिर देखा जाए तो डेडलॉक इस चीज़ पर भी है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब वहाँ पर नहीं जा रहे। लेट्स से वज़ीर आज़म साहब चले जाते हैं इसी हफ्ते किसी भी दिन वहाँ पर, व्हाट नेक्स्ट? वज़ीर आज़म साहब जब वहाँ जाएंगे तो वो मजीद क्या मुतालबात वहाँ पर रखेंगे? क्योंकि देखें लाशें दफनाने का जो मामला है, फौरी तौर पर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो ऐसे इकदाम करें कि एटलीस्ट लाशें तो दफनाई जाए ना, बाकी के मुतालबात टेबल टॉक हो सकती है। देखिए लाशें दफनाने के हवाले से भी एक और मुतालबा सामने आ गया है। हमारी तो गुजारिश रिक्वेस्ट जारी थी, अब एक मरासला हुकूमत को मौसूल हुआ है अफगान गवर्नमेंट की तरफ से। अफगान गवर्नमेंट ने भी एक मरासला जारी किया है जिसके तहत उन्होंने ये बताया है कि 10 मैयतों में से 7 मैयत जो है वो अफगान शहरियों के हैं, और उन 7 मैयतों में से 3 के जो लवाकिन बुरसा हैं अफगानिस्तान में उन्होंने एप्लीकेशन सबमिट कर दिया है, और अफगान गवर्नमेंट से मुतालबा कर रहे हैं कि उनकी मैयतें जो है अफगानिस्तान पहुंचाई जाए ताकि उनके अफगानिस्तान में तदफीन हो सके। अब इस सूरत हाल को भी हम देख रहे हैं, और इसके बाद तो मजीद जो हमारा रिक्वेस्ट है, जो गुजारिश है, वो यही है कि जो मैयत है उनके तकद्दुस को मद्देनजर रखते हुए शरीयत बताता है, हमारा जो कल्चर, हमारे जो वैल्यूज, हमारे जो रस्म व रिवाज, बराए करम मैयतों को की तदफीन की जाए, और जो अफगान हुकूमत जिन मैयतों का बता रहे हैं उन्होंने मरासला भिजवाया है वो अफगान हुकूमत के हवाले किए जाएं। बाकी उनके जितने मुतालबात हैं, फेडरल गवर्नमेंट की भी कमिटमेंट है, जो नुमाइंदगान तशरीफ लाया, बलूचिस्तान गवर्नमेंट भी ये कह रहे हैं कि हम हाजिर हैं तमाम मुतालबात, और बहुत सारे लोग वहां पर उनको एतमाद है बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे। 2.5 साल में जो हमने लॉ एंड ऑर्डर का सूरत हाल बेहतर किया है, 2020 में अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा वाकया पेश नहीं है, 19 में 1-2 वाकयात पेश आए होंगे। इस गवर्नमेंट से कबल ये तो कांस्टेंट इस तरह के वाकयात होते थे, हाय रोज इस तरह के वाकयात होते थे। हमारे हजारा जो बरादरी है अपने मोहल्लों में कन्फाइन होकर रह गए थे। अब तो ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। अब तुमको ट्रस्ट होना चाहिए कि ये गवर्नमेंट परफॉर्म करके दे रहा है, ये जो कहता है वो करता है, अमलन हम करते हैं। तो उसके बावजूद भी वो मानने को तैयार नहीं। लेकिन हमारी जो गुजारिशात हैं वो जारी हैं
अलगर्ज के कुछ एलिमेंट्स ऐसे बताए जा रहे हैं कि वो जो तदफीन है मैयतों के उस पे उन्होंने रोड़े अटकाए, रुकावटें डाली, क्योंकि चंद दिन कबल जो मुंतजमीन है उन्होंने बैठ के ये फैसला किया था कि जो तदफीन का अमल है उसको मुकम्मल किया जाएगा, उसके बाद प्रोटेस्ट यहाँ पे भी होगा, जो एमपीएस हैं वो असेंबली में इसके लिए आवाज उठाएंगे, एहतजाज मुजाहरे मुख्तलिफ जगहों में होंगे। लेकिन ये है कि इस बात पे आमादगी का इजहार कर लिया गया था कि जो मैयतें हैं उनकी तदफीन कर ली जाएं। बाद में कुछ अनासिर जिन्होंने ऐसा होने नहीं दिया और एक मुश्किल की सूरत हाल उन्होंने पैदा कर दी है। लेकिन बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम गुजारिश कर रहे हैं, अभी भी गुजारिशात जारी हैं, रिक्वेस्ट जारी हैं, इस वाक़े का जितना मजम्मत हो सकता था हमने किया। कोई ऐसा इस्तिलाह जो डिक्शनरी में मौजूद है जो एहसास से जुड़ा हुआ कोई लफ्ज या इस्तिलाह है या मजम्मत से हमने किया है। हम ये कमिटमेंट कर रहे हैं कि इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आइंदा ऐसा कोई वाकया पेश नहीं आएगा। बलूचिस्तान गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें, अपने गवर्नमेंट पे ट्रस्ट करें। हमने मैक्सिमम कोशिश की, हमने परफॉर्म करके दिखाया है। हजारा बरादरी कि ये अमलों से पहले यानी 2 अशरे कबल की जो आम सूरत हाल थी, जब आम शहरियों की तरह वो जिंदगी गुजारते थे, खुश व खुर्रम रहते थे, पूरे बलूचिस्तान में ट्रैवल करते थे, वो सूरत हाल बहाल हो गई थी इस वाक़े से कबल। बहुत सारे मुजाहिरीन वहां पर धरना पे बैठे हुए थे, टॉक शोज में उनको भी पैनल पे लिया गया। मैं यहाँ से उनकी खिदमत में हाजिर हुआ और उन्होंने बाद में एतराफ किया, वो रिकॉर्ड पे मौजूद है, टॉक शोज के रिकॉर्ड पे मौजूद है, कल परसों के, आप उठा के देख लें। वो खुद एतराफ कर रहे हैं, एक्नॉलेज कर रहे हैं। एक बुजुर्ग खातून वो वहां पर बैठी हुई थी, उसने एक्नॉलेज किया। एक जो है शहीद की बेटी, कैसे मरहले पे शौक की वजह से किसी की आवाज नहीं निकलती, लेकिन उस सूरत हाल में भी उसने अपने जो एतराजात थे, जो गिले शिकवे थे वो जरूर किए, लेकिन आखिर में उसने कंसीड किया यस किस वाक़े से कवर बलूचिस्तान में। लेकिन लियाकत शहबानी साहब ये कहिएगा कि मुतासिरीन जो है वो फिर वज़ीर आज़म साहब के क्यों इस्तार करें कि वज़ीर आज़म साहब वहाँ पर आएँ? वो आएंगे तो तभी हम जो है वो मैयतों की तदफीन करेंगे, वो ये इसरार क्यों कर रहे हैं? फिर हमारे समझ से बालातर है। वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब वहीं पे जाके धरना में और इमाम बारगाह हमायदीन के साथ भी उन्होंने यही जिक्र किया कि वज़ीर आज़म साहब अगर तशरीफ लाते भी हैं तो लॉ एंड ऑर्डर की मेंटेनेंस प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, वो हम नहीं करना है। आपकी दीगर वेलफेयर की जो मामलात हैं हम नहीं करने हैं। और इन्वेस्टिंग जारी है, टेररिस्ट है, वो आए हैं, कहीं छुपे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे होंगे, उनके खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस होंगे। इस वक्त इन्वेस्टिगेशन चल रही है, मुमकिन है कि हमारे साथ शेयर नहीं कर रहे हैं कि कहीं टेररिस्ट को क्लू ना मिले, तो एतमाद रखना चाहिए। इंशाल्लाह वो अरेस्ट भी होंगे। और फिर हमने गुजारिश किया कि जिस लेवल पे जाके आप सेटिस्फाई होते हैं, जो सिक्योरिटी चाहिए आपके एरियाज में चाहिए, माइंस में आपको चाहिए, जहाँ वर्क प्लेस है जहाँ पर आप काम करते हैं, जो चाहिए हम हाजिर हैं। तो ये तो हमारे भी यानी सोच से इस वक्त बालातर है। हमें भी समझ में नहीं आ रहा कि जुल्फिकार बुखारी साहब है, अली जैदी साहब है, वो भी वफाकी वज़रा हैं, नुमाइंदगान हैं, शेख रशीद साहब जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, उसकी रेलेवेंसी सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज्यादा है, उसके साथ भी वो ना बैठे और प्राइम मिनिस्टर साहब ही के आमद के लिए वो इंसिस्ट कर रहे हैं। अब मैं क्या कह सकता हूँ इससे ज्यादा। हमारी तो गुजारिश, रिक्वेस्ट का जो अमल है रोज अव्वल से जारी है और के खात्मे तक जारी रहेगा। सही। तो लियाकत साहब, आपके पास कोई ये खबर कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कब तशरीफ ला रहे हैं वहां पर? अभी घंटा कबल शिबली फराज साहब ने मीडिया पे, आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा, कि वो बता रहे थे कि इसी हफ्ते में वो तशरीफ लाएंगे। इसी हफ्ते में तशरीफ। हुमायूं अख्तर साहब, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, मैं सुन सकता हूँ आपको। हुमायूं अख्तर साहब, जिस तरह लियाकत साहब भी कह रहे हैं कि शिबली फराज, बकौल शिबली फराज साहब के इस हफ्ते ये इम्कान है वज़ीर आज़म साहब किसी भी दिन वहाँ पर जाएंगे, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सर अभी भी वो लोग फिर इंतज़ार करें कि वज़ीर आज़म साहब का अभी भी प्लान कुछ नहीं बना कि वो किस दिन जाएंगे, अभी उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इस हफ्ते जाएंगे, तो तब तक बैठे रहे वो इसी तरह मैयतों को लेकर धरना जारी रखें, तदफीन की तरफ ना जाएं? नहीं, मुझे यकीन है कि जरूर कोई बेइंतहा इम्पोर्टेंट मसरूफियत होगी। वज़ीर आज़म ने कम्युनिकेट किया है, शेख रशीद साहब भी गए हैं, पूरी बलूचिस्तान गवर्नमेंट
حرکت میں ہے اور بہت جلد اگلے ایک آدھے دن میں وزیر اعظم پہنچیں گے. انہوں نے ٹویٹ کیا کہ میں پہنچوں گا. صحیح. ملک احمد خان صاحب، آپ نے لیاقت شاہوانی صاحب، ہمایوں اختر صاحب کی گفتگو سنی. آپ کے خیال میں جو مطالبات سامنے رکھے جا رہے ہیں متاثرین کی جانب سے، وزیر اعظم عمران خان صاحب وہاں چلے بھی جاتے ہیں، ملاقات ہو جاتی ہے، تو جو مطالبات ان کی جانب سے رکھے گئے ہیں، کیا وہ تمام مطالبات حکومت مان لے گی ان کے؟ اچھا دیکھیں، یہ بنیادی مسئلہ کیا ہے کہ یہ جو لفظ داد رسی ہے وہ ہوتا کیا ہے؟ اگر ان مقتولین کے ورثاء کا یہ مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم یہاں پر آئیں تو پھر ہم تدفین کریں گے، تو اس کو ایک انسانی المیہ کی صورت اختیار کرنا کہ میت کتنے دن باہر رکھی جا سکتی ہے، اور چوتھا پانچواں دن تو آج ہو گیا ہے. تو وزیر اعظم کی جو بھی مصروفیت تھی، اب یہ بات کہنا بالکل ناجائز ہے کہ وہ کسی بھی وجہ سے وہاں پر نہیں پہنچے. یہ ان کو وہاں پہنچ کر ہر صورت ان کی یہ داد رسی کرنی تھی. دوسرا معاملہ کہ ان کے مطالبات کیا ہے، تو میں نے آپ سے بات کی کہ اب یہ لیاقت صاحب کیونکہ حکومتی سطح پہ کیے گئے اقدامات پہ ان کا حق ہے کہ وہ بتائیں. وہ بڑی اس مشکل گھڑی سے گزر رہی ہوگی بلوچستان حکومت. یہ ایک لا اینڈ آرڈر سے بڑھ کے مسئلہ ہے، یہ ایک دہشت گردی سے بڑھ کے مسئلہ ہے، یہ ایک ایسی کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے جس کی اب یہ بالکل واضح طور پہ ان کی نسل کشی کی بات جو ہم بار بار جینوسائیڈ کہہ رہے ہیں، تو یہ کچھ ایکسٹرا آرڈینری سلوشنز مانگتا ہے. تو ایکسٹرا آرڈینری سلوشنز جو ہیں ان میں اس بات کا تو لازمی طور پہ کہ ان لوگوں کو پکڑا جانا چاہیے. اگر اس میں جیسے ہمایوں صاحب بات کر رہے تھے کوئی بیرونی ہاتھ ملوث ہیں تو اس کے اوپر کانکریٹ ڈوزیئر بلائیں. صبح ہائی کمشنر کو، جس ملک کے اوپر بھی ان کو شبہ ہے، اس کو بلا کر اس کے ہاتھ میں پکڑائیں، اس کو چلتا کریں یہاں سے، اسے بتائیں کہ یہ ہمارے پاس ایویڈنسز ہیں. انٹرنیشنل کمیونٹی میں آواز اٹھائیں. اگر وہاں پہ کوئی ڈرٹی گیم کھیلی جا رہی ہے تو اس کی ایویڈنسز دینا کون سی ان کو، اگر کوئی ایسے فٹ پرنٹس موجود ہیں. اور اس پہ میں نے کل فارن منسٹر کی بھی میڈیا ایک ان کی سنی ٹاک شو میں ان کی بات تھی کہ وہ بتا رہے تھے کہ میں نے تو اس سے پہلے بھی کہا اور آئندہ کا بھی خطرہ ہے. تو پھر وہ کانکریٹ ایویڈنسز پرووائڈ کیے جانے چاہیے، پبلک کیے جانے چاہیے. وہ ڈوزیئرز ان لوگوں کے ہاتھ میں جانے چاہیے جن ممالک کی طرف آپ کا اشارہ ہے. اس کی حساسیت، اس سے بڑی حساسیت اب کسی چیز کی نہیں ہو سکتی کہ ایک کمیونٹی جو کہ آلریڈی مارجنلائزڈ ہے اور اس کی جینوسائیڈ ہو رہی ہو تو ہم کسی اور چیز کی حساسیت کی پرواہ کر رہے ہیں. وہ ہو نہیں سکتی. اب تیسری بات میں نے آپ سے یہ کی تھی کہ یہ جو ایکسٹرا آرڈینری سرکمسٹانسز ہیں ان لوگوں کے میتیں پڑی ہیں، یہ ایک ہیومن کرائسس کے طور پہ سامنے آ رہا ہے. تو اس میں کیا کیا جا سکتا ہے کہ گورنمنٹ ان کو ایشورنس دے، ان کی جو کہ ان کے سول بریڈ ارنرز تھے. یہ بھی درست ہے کہ کچھ اس میں افغان نیشنلز تھے تو ان کی باڈیز واپس جانی ہیں، تو یہ دو ممالک کے درمیان بھی اس کی بات ہوگی. تو یہ کس طرح کی صورتحال پہ اگر میری تکلیف کا جو ہے وہ اس کو دور کرنے کے لیے وزیر اعظم کو وہاں جانا پڑے تو اس میں ایک لمحے کی تاخیر نہیں ہونی چاہیے. یہ ان کا مینڈیٹ ہے، یہ ان کی رسپانسبلٹی ہے. ہی شوڈ گیٹ دیئر ایز سون ایز پاسبل. یہ کوئی پولیٹیسائزڈ پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. یہ تقاضا کرنا ان کا حق ہے، انہوں نے کیا ہے تو درست ہے. اینڈ آئی ریممبر جو بھی لیاقت صاحب کہہ رہے تھے، یہ بات درست ہے کہ ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ایک عرصے سے یہ ہو رہا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو یہ تو پھر ایک فیلئر آف اسٹیٹ کے طور پہ لیں. وہ کیسے لیں کہ جب ان کو آپ نہ سیکیورٹی پرووائڈ کر رہے ہیں، نہ آپ ان کو ایک اکنامک سیکیورٹی کی ان کے ساتھ بات ہو رہی ہے. بلوچستان گورنمنٹ اپنا سارا زور بھی لگا رہی ہوگی ان کی مدد کرنے کے لیے، لیکن کچھ چیزیں بیونڈ دا کنٹرول آف بلوچستان گورنمنٹ ہوں گی. وہ لا اینڈ آرڈر کی وہ صورتحال جس میں ایک نارمل لا اینڈ آرڈر میں آپ اپنی کچھ ایکٹ کرتے ہیں، ایک ایسا ایکٹ جس میں ٹیررزم کے کچھ ایسے شواہد آپ کو مل جاتے ہیں جو کراس بارڈر ہیں، تو پھر اس میں تو آبویسلی آپ کی سی ٹی ڈی کے ساتھ فیڈرل گورنمنٹ بھی ہوگی، آپ کا سیکیورٹی اپریٹس بھی سارا ہوگا. تو اس میں پرائم منسٹر کا اور زیادہ ضروری ہو جاتا ہے کہ اگر ایسی صورت فیڈرل گورنمنٹ کی پوزیشن میں آ رہی ہے تو وہ پھر یہ وزراء جو جا رہے ہیں، کل کیا کیا انہوں نے وہاں پہ جا کے، مجھے تو اس بات پہ شکوہ ہے کہ وائی دوز پیپل لیاقت شاہوانی صاحب ایک بہترین
बात कर सकते हैं। मैंने कल उनको सुना जब वो उनसे इंगेज थे, कुछ वीडियो पे मैंने उनकी टीवी सुनी तो बड़ी मुनासिब बात थी। चे जाए कि जो इनके वफाकी वज़रा गए तो उनको तो अपने अल्फाज का इंतखाब भी नहीं पता था क्या करना है। तो एक तरफ तो वो दुखी लोग अपनी मैयतें लेके बैठे हैं, दूसरी तरफ आप जाकर ऐसे लोगों को भेज रहे हैं जो उनसे प्रॉपरली निगोशिएट, मे बी शायद लैंग्वेज बैरियर था, प्रॉब्ली वो जो वजीर साहब थे शायद उनकी मलिक साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया, उर्दू में कम्युनिकेट करना मुश्किल थी, आई डोंट नो, बहरहाल एनीवेज इट वाज नॉट गुड। सही। नदीम असगर खैर साहब, आपके ख्याल में सोल्यूशन क्या है सर? मतलब क्या स्टेप्स ऐसे हैं जो कि इमीडिएटली लेने चाहिए गवर्नमेंट को इस टाइम? पहली बात यह कि अभी मैं टिकर देख रहा था नीचे के प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो इनकी कैबिनेट मीटिंग हुई है उसमें अभी तक उन्होंने फैसला नहीं किया और वो ज़ेरे गौर है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे। पहली बात यह कि जब हमने स्टेप्स उठाने हैं, एक तो दो चीज़ें हैं। आपके फॉरेन मिनिस्टर कह रहे हैं कि ये हमसाए ममालिक या कोई दूसरे ममालिक हैं जिनकी मुदाखलत की वजह से ये शातें हुई हैं। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो फिर मुल्क के प्राइम मिनिस्टर साहब को फ़ौरन ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए उनके पास जाना चाहिए, उनकी बात सुननी चाहिए, उनकी दादरसी करनी चाहिए। क्या प्राइम मिनिस्टर साहब वोट लेने के लिए लोगों के पास नहीं जाते? अगर उनके पास जाते हैं तो फिर इनके पास क्यों नहीं जा सकते? उनकी दादरसी करने के लिए क्यों नहीं जा रहे? मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर साहब को फिर फौर वहां जाना चाहिए, उनकी दादरसी करनी चाहिए, और ना कि जिस तरह लियाकत साहब कह रहे थे कि कोई ताकतें या कोई इस तरह की इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए। तो मैं समझता हूँ उससे पहले ही उनको उनकी तदफीन होनी चाहिए और प्राइम मिनिस्टर साहब को जाकर उनकी दादरसी करनी चाहिए और गवर्नमेंट लेवल पर उनको मुकम्मल सपोर्ट देनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब का रवैया कि मैं जाऊंगा, भाई आप ये बताएं कि किसी शादी पर जाना है, आपने कहना है कि 4-5 दिन बाद मैं आऊंगा और फिर मैं अटेंड कर लूंगा। भाई वहां लाशें पड़ी हुई हैं, आप जाएं, वहां जाकर उन लोगों की दादरसी करें। प्राइम मिनिस्टर साहब का मुझे हमेशा, मैं ये मौका नहीं है इस तरह की बात करने का, हमेशा यही रवैया रहा है। अगर कश्मीर की बात करें तो जब कश्मीर का इशू आता है तो तमाम सियासी जमातें कहती हैं आए बैठें और कश्मीर के इशू पर बात करते हैं, तो वो नहीं करते। अगर वो कहे कि असेंबली में आए, जो कि खुद कहते थे कि मैं असेंबली में आऊंगा और असेंबली में आकर बात करूंगा, ना असेंबली में जाते हैं। और अगर लाशें पड़ी हुई हैं, कोयटा में लाशें पड़ी हुई हैं और वहां मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाने के लिए तैयार नहीं है, इससे बड़ी हमारी क्या बदकिस्मती होगी। इस मुल्क की हमेशा बदकिस्मती रही है, कभी मोइन कुरैशी जैसे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं, कभी शौकत अजीज जैसे प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं और कभी मसूफ जो है इमरान खान न्याजी साहब की सूरत में आ जाते हैं। यही हमारी बदकिस्मती है। अगर अवामी आदमी होते, अवाम में से होते, अवाम के वोटों को दे और लोगों के दुख दर्द में शरीक होते तो तब उनको जरूर ये एहसास होता कि आज लाशें बाहर पड़ी हुई हैं और मुझे फौरन उधर जाना चाहिए। और अभी भी वो सोच रहे। पॉइंट ऑफ व्यू आ गया आपका नदीम साहब, ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आते हैं। अभी तक जो इस साने पर हुकूमती कारकर्दगी है, इजलास पर इजलास हैं, कमेटियां बनाई गई हैं। लियाकत शाहवानी साहब भी हमें बता रहे थे कि सूबाई गवर्नमेंट अब तक क्या कर पाई है, लेकिन सवाल यह है कि क्या इजलास, ये कमेटियां जो मीटिंग्स हो रही हैं, इससे मुतासिन की दादरसी होगी, उनको इंसाफ मिल सकेगा कि नहीं? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिबेट यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। हुमायूं अख्तर साहब, आपकी तरफ आऊंगा मैं सर। आपने अपोजिशन की गुफ्तगू सुनी, उनका यह कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को तो इतनी देर करनी ही नहीं चाहिए थी। उन्होंने माना ट्वीट की, पूरी मशीनरी हरकत में आई और उनकी दादरसी के लिए वज़रा भी वहां पर गए। लेकिन यह समझ से बालातर है कि वज़ीर आज़म साहब अगर इससे पहले जब हज़ारा बरादरी के साथ इस तरह का सान्या हुआ, वज़ीर आज़म साहब उस वक्त गवर्नमेंट में भी नहीं थे और उस वक्त तो वो फौरन से चले गए, लेकिन अब ऐसा मामला क्या है कि वो नहीं जा पा रहे? हुमायूं अख्तर साहब। सुखैरा साहब, मेरे सवाल था। जी जी बिल्कुल। मैंने तफसीली कहा है जी कि ऑब्वियसली पहले एक वो लीडर ऑफ अपोजिशन लीडर थे, अब वो वजीर आजम हैं और जैसे मैंने कहा कि चंद दिनों में, एक आधे दिन में वजीर आजम पहुंचेंगे। उन्होंने कहा है, उन्होंने हजारा कम्युनिटी को ये अश्योर किया है कि वो उधर पहुंचेंगे। इस वक्त जो एक ज्यादा जरूरी काम है कि इतने सालों बाद ये जो तखरीबकार हैं, उन्होंने हजारा कम्युनिटी के खिलाफ ये कदम कैसे उठाया है, और जो हमने बहुत ही कामयाब दुनिया में
काउंटर टेरर मुहिम चली थी पाकिस्तान ने, इसकी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और उसका जायजा लिया जा रहा है कि पहले तो ये चीज दोबारा रिपीट ना हो। और आपने खुद फरमाया कि पूरी हर सतह की हुकूमती मशीनरी इस वक्त इन एक्शन में है। और एक आधे दिन का सवाल है, पूरी कौम बशमूल प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी हुकूमत और पूरी पीटीआई पूरी तरीके से हमारे हजारा कम्युनिटी के गम गुस्से में शरीक है और उसमें शामिल होगी और इंश्योर करेंगे कि ये वाकया दोबारा ना हो। सही। लियाकत शाहवानी साहब, ऑपोजिशन का ये कहना है कि सर फेलियर ऑफ स्टेट है, विफाक हो सूबाई हो। आप लोगों की ये फेलियर है कि अभी तक ये जो सानिया हुआ ये तो हुआ, उसके बाद जो लोग धरने में मौजूद हैं वो मैयतों की तदफीन नहीं कर पा रहे, आपके किसी भी यकीन दहानी में नहीं आ रहे, वो सिर्फ इसी बात पर बजीद हैं कि वज़ीर आज़म साहब वहां पर आएंगे तो ये डेडलॉक खत्म होगा। तो ये भी आप लोगों का फेलियर है? ये हमारा फेलियर नहीं है, अनफॉर्चुनेटली असास मामला है। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि कुछ लोग बीच में हैं जो पॉइंट स्कोरिंग कर रहे हैं, और ये मैं नहीं बता रहा, ये बता रहे हैं खालिक हजारा साहब जो इलेक्टेड एमपीए हैं हजारा बिरादरी के, ये बता रहे हैं कादिर नायल साहब जो इलेक्टेड एमपी हैं हजारा बिरादरी के, हजारा डेमोक्रेटिक पार्टी का चेयरमैन बता रहे हैं, जो तमाम जो इंगेजमेंट्स हुए हैं, डिस्कशंस हुए हैं तमाम अमायदीन के साथ मुश्तरका तौर पे, वो बता रहे हैं कि अवाइल ही में मुत्तफिका तौर पे तकरीबन ये बात तय हो चुका था कि तदफीन की जाएगी मैयतों की, उसके बाद प्रोटेस्ट भले जारी रहना चाहिए, उन्होंने कहा उनका हक है। जो एमपीएज हैं असेंबली में वो एहतजाज करेंगे, प्रेस क्लब्स के सामने एहतजाज होगा, लेकिन मैयतों की तदफीन कर दी जाएगी। और उन्होंने खुद अपने कल भी बताया कि कुछ एलिमेंट्स हैं जिन्होंने रोड़े अटकाए, बाद अज़ां मैयतों की तदफीन होने नहीं दी, और पॉइंट स्कोरिंग और बदकिस्मत जो हमारा एक मिजाज रहा है कि पॉलिटिक्स हम जो है ना हर जगह में याद आ जाता है, हर एक इश्यू को पॉलिटिसाइज करते हैं, सेंसिटिविटी को नहीं देखते, जो लोग हर्ट हैं उनके फीलिंग्स को नहीं देखते। तो ये तो उनका अपना गुफ्तार है, उनका बयान है, उन्होंने मीडिया पे कहा है। तो अगर ऐसा नहीं होता बेहतर होता। मैं अपनी गुजारिश करता हूँ, देखें मामला सेंसिटिव है, सास है। किसने इनकार किया है कि जुल्म नहीं हुआ, जबर नहीं हुआ? कौन कहता है कि इबरतनाक, शर्मनाक, अलमनाक, दर्दनाक, कर्बनाक वाकया नहीं? कौन कहता है कि सिक्योरिटी नहीं होनी चाहिए? और किसने सिक्योरिटी में गफलत सर अंजाम दिया? देखें 2020 में एक वाकया नहीं हुआ, जैसे मैंने आपको जिक्र किया, 2019 में मेरे ख्याल 1-2 से ज्यादा वाकयात नहीं हुए। इस गवर्नमेंट के आने से कबल 2 अशरों में जो जुल्म जबर हुआ है, जो हमारे हजारा भाइयों बहनों के ऊपर जो जमीन बिल्कुल तंग कर दिया गया था, उनकी शहादतें, वो बम ब्लास्ट, वो धमाके, वो खुद कुछ धमाके, वो टारगेट किलिंग, वो हालात वो अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गए। अभी तो 2020 में जो 2 अशरा कबल जो नॉर्मल हालात थे वो वापस बहाल हो गए थे। हजारा हमारे बहन भाई पूरे बलूचिस्तान में बाय रोड जो है वो कराची ट्रैवल करते थे, तफ्तान ईरान ट्रैवल करना शुरू कर दिया, इस्लामाबाद बाय रोड आ रहे हैं, जा रहे हैं, अपने कारोबारी जिंदगी उनका आगे बढ़ रहा है। पिकनिक पॉइंट्स पे बलूचिस्तान के जो एरियाज हैं वहां आ रहे हैं, जा रहे हैं जी। 80% वो जो साइकोलॉजिकल एक खौफ था, जो हैरेसमेंट 2 अशरों में एक पैदा हुई थी, जो नेचर साहब पॉइंट स्कोरिंग कौन कर रहा है, रोड़े कौन अटका रहा है, आप ये भी बता। कुछ एलिमेंट्स हैं, वो खालिक साहब ने उनका नाम जिक्र नहीं किया, उन्होंने कल बताया था कि कुछ एलिमेंट्स हैं। सही, तो उससे आप किस तरह फिर कैसे निपटेंगे इस सिचुएशन से? देखिए सिचुएशन में हम ये चाहते हैं कि अगर कोई इन्वॉल्व है भी, हम ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा ना करें कि उसका मुज़ाकरात पे कोई असर पड़े। वो एलिमेंट्स हैं भी, उनसे भी हम गुजारिश ही करेंगे। ऑल राइट, आपका पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। शुक्रिया आपका लियाकत साहब, हुमायूं साहब और नदीम असगर साहब और मलिक अहमद खान साहब, आप चारों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आज की डिबेट का एंड क्वेश्चन फिर यही है कि वज़ीर आज़म साहब कब जाएंगे अब सानिया मच के मुतासिरीन से मिलने के लिए। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं हूं रहमान अज़हर और अपना पसंदीदा शो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मज़ीद मालूमात के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करें।